So we were seeing different types of data types, like data types are categorized into three categories. One is basic data types, then we have user defined data types and derived data types. Okay. So we were seeing the basic data types. We see that in the basic data types, we also have some modifiers. Okay. Like signed, unsigned are the modifiers. Okay. So, and we have some basic data types like integer, character, float, double, and then void. So we have that there are different combinations we can use. And similarly, after, like if I use a modifier with a basic data type, so basically that works as a new data type. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया था कि अगर मैंने जैसे इंटीजर मेरा एक डेटा टाइप है और अगर मैंने यहाँ पर आपका साइंड यूज करा हुआ है, साइंड जो एक मॉडिफायर है, अगर मैं यूज करता हूँ साइंड एक्स, है ना, साइंड इंटीजर एक्स, सो नाउ बेसिकली इट वर्क्स एज ए न्यू डेटा टाइप. ठीक है, ये तो आपको शायद समझ में आ गए होंगे कि ना ये कैसे वर्क करते हैं. देखो, अगर नहीं पता तो एक एग्जांपल ले लो कि सपोज I have an integer data type. Okay, so I declare a variable like this, integer x is equal to 5. Okay, so I declare a variable like this. So similarly now I can have more data types like signed integer x is equal to 5. So now I have a new data type, actually signed integer. So basically it is not called as a new data type, but it is basically called a modifier. Okay, so it is a modifier and this is a data type. So when I add a modifier to a data type, basic data type, so it works basically as a new data type. So signed integer x equal to 5. Then I can also have short integer and then x equal to 5. And similarly I can also have long integer and then x equal to 5. And similarly we have many combinations. We say that all the combinations does not work. Basically there are some combinations given and we have to just learn that combination. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के आगे शॉर्ट और लॉन्ग लगा दो ना. हमने देखा था कैरेक्टर में केवल साइंड और अनसाइंड होता है, शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होता. इंटीजर में चारों जो मॉडिफायर्स ऐड हो जाते हैं, फ्लॉट में कोई सा भी ऐड नहीं होता, डबल के केस में केवल लॉन्ग डबल होता है. ठीक है, तो ये हमने सारा देखा था. ठीक है, so basically now these terms basically works as a new data type. Okay, so now let us discuss about these data types, that what are the size of these data types, and from the size we can now get what are the ranges of these data types. Okay, now let us see, so that you can have a basic idea about that. So in generally what happens is that, so we start from the character. So character, so like we take a character ch is equal to, suppose I have taken a character like k. ठीक है, so basically ch is a variable which contains a character value that is known as k. Okay, that is a k. So इस तरह से क्या होता है, आपका एक वेरिएबल ch क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी k एक वैल्यू आ जाएगी ना. इस तरह से जो आपका कैरेक्टर वेरिएबल आपका डिक्लेयर कर दिया आपने. So what happens is that in C or C++ or in any other language even, the size of character is only 1 byte. ठीक है, साइज क्या होती है कैरेक्टर की, आपकी जो कैरेक्टर होता है आपका उसकी साइज होती है 1 बाइट, है ना. 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, है ना. 1 बाइट का मतलब हो गया आपका 8 बिट. तो देखो इसी तरह से हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो जो इंटीजर की साइज जो होती है वो जनरली होती है 4 बाइट, लेकिन आपके केस में जो है पुरानी बुक है तो 2 बाइट दे रखा है. ठीक है, इंटीजर की साइज अगर आप यूज करोगे ना प्रोग्राम्स वगैरह कहीं पर भी तो 4 बाइट आती है आजकल. ठीक है, ये बहुत पहले की बुक लिखी हुई है, तो उस टाइम पर जो है 2 बाइट्स हुआ करती थी, आर्किटेक्चर जो था पुराना था ना. तो आप 2 बाइट भी मान सकते हो, 4 बाइट भी मान सकते हो इंटीजर की साइज को. बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 2 बाइट लेकर चलते हैं. ठीक है, तो इंटीजर की साइज है आपकी 2 बाइट. उसी तरह से देखो आपकी क्या होता है कि जो है फ्लोट की बाइट होती है आपकी सारी दे रखी है ना चार्ट में. फ्लोट की 8 बाइट होती है, लॉन्ग की जो होती है फ्लोट की 4 होती है, लॉन्ग की जो होती है आपकी फ्लोट की 4 होती है, डबल की जो होती है वो आपकी 8 होती है और लॉन्ग डबल की आपकी 10 बाइट्स होती है ना. तो देखो अब ये बाइट्स किस तरह से वर्क करती है. ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं ऐड करूं तो आपका जो शॉर्ट इंटीजर होता है ना, शॉर्ट इंटीजर उसकी साइज होती है 2 बाइट, 1 बाइट है ना, इसकी आधी हो जाती है. अब इंटीजर 2 बाइट का है तो शॉर्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 1 बाइट का हो जाएगा ना. लॉन्ग इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 4 बाइट का हो जाएगा. लॉन्ग इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 4 बाइट का हो जाएगा. ठीक है, अब देखो एक बाइट में कितने कैरेक्टर होते हैं. अब इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं ना. देखो कैरेक्टर मतलब कितने बाइट हो गए, एनीवन इन द वेटिंग क्यू, नो. ओके, लेट्स सी. So now let us see how to calculate the range from these bytes. ठीक है, ये bytes तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, इसकी इतनी होगी इसकी इतनी होगी, आर्किटेक्चर पे होता है कंप्यूटर के. ठीक है,
हो सकता है किसी के कंप्यूटर में इंटीजर 2 बाइट आ रहा हो तो किसी के कंप्यूटर में 4 बाइट भी आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द रेंज कि जो इसकी वैल्यूज है वो कहां से कहां तक होगी। देखो जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट होता है, 1 बाइट मींस 8 बिट, है ना, 1 बाइट मींस 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 बाइट हो गई, ये 8 बिट्स हो गई ना, टोटल 8 बिट हो गई। अब देखो एक बिट में क्या होता है, आपका बिट क्या करता है, 0 या 1 की जैसे काम में ले सकता है ना। तो यहाँ पर जो है 0 1 में से कुछ भी आ सकता है ना। बेसिकली नाउ इट वर्क्स एज ए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। आप वैसे देखो छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर देखता हूँ, देखो आपको समझाऊं कि जैसे मान लो कि मेरी 2 बाइट है ना, 2 बिट है, या फिर सबसे पहले लो सपोज आपकी 1 बिट है, तो 1 बिट से आप कितने डिफरेंट नंबर्स बना सकते हो ना, 2 ही बना सकते हो, या तो 1 बिट है तो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है। तो 1 बिट अगर है तो उससे केवल 2 नंबर बन सकते हैं ना। देखो तो 1 बिट से आपका इधर मैंने लिख दिया कि अगर आपका 1 बिट है तो 2 नंबर बन सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब अगर 2 बिट है तो कितने नंबर बन सकते हैं, जैसे 2 बिट है तो जैसे मानने मैंने ले लिया ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया ना, और ये 0 ले लिया, 1 ले लिया। देखो कितने बन जाएंगे, इसके बनते हैं 2 इंटू 2 4। कैसे, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 0 यहाँ 1, फिर यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 1 यहाँ 1, तो 4 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो अगर आपने 2 बिट ली तो इसका मतलब आप 4 नंबर उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। 2 बिट ली तो 4 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 2 बिट से आगे आपके पास बेसिकली कैसे आता है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, ऐसे आता है। 3 बिट होगी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। मैथमेटिकल वो होता है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जितनी बिट होगी आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ये कितना हो गया, 1 2 8 बिट है तो 2 रेज टू द पावर 8 हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि आप अगर 8 बिट है तो उससे 2 की पावर 8 डिफरेंट नंबर्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है, देखो 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32 होता है ना, और उसमें आप 8 का और मल्टीप्लाई कर दो तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 8 3 24, 8 दूना 16, तो 6 इधर आ गया, तो 256 आपका जो है आंसर आ गया, ठीक। तो मतलब आप एक बिट में 256 डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बाइट से, एक बाइट में आप 256 डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर्स अगर हम देखें तो 256 है ना, तो 1 2 3 है ना, तो आपका टोटल 256 तक जाएगा। लेकिन जो है नंबर हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से करते हैं। तो आपकी रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई आपकी 0 से 255 तक। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 255, 1 से करते हैं 253, हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से लेकर 255 तक ये रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। ये तो हो गई कैरेक्टर की बात। ऐसे इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर 2 बाइट है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 16, 2 की पावर 16 निकालोगे तो इतने सारे नंबर्स जो है वो एक इंटीजर जो है 2 बाइट से, तो यहां से आपकी रेंज निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो देखो अब ये तो हुआ, देखो कि अगर कैरेक्टर जो है ऐसे है ना, 8 बाइट से आप 256 है। एक कॉन्सेप्ट दूसरा होता है, वो होता है आपका साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट, है ना। साइंड और अनसाइंड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो लास्ट वाली बिट होती है ना, पहली वाली बिट, ये साइन के लिए रिजर्व रहती है, या तो प्लस आएगा यहाँ पर या माइनस आएगा, तो ये साइंड के लिए रिजर्व रहती है आपके ना, प्लस के लिए माइनस के लिए। तो जो केवल 7 वाले काम करते हैं, तो आप कितने नंबर रिप्रेजेंट सकते हो, तो 2 की पावर 7 तो पॉजिटिव और 2 की पावर 7 नेगेटिव। ये वाला जो फर्स्ट बिट होती है साइन के लिए रिजर्व हो जाती है, तो आप इसको छोड़ दो, बाकी टोटल कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 तो आप हो गए नॉन नेगेटिव नंबर्स, और 2 की पावर 7 हो गए आपके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये जो बेसिकली रेंज आ जाती है वो आ जाती है, शायद वो देख लेते हैं अपन कितनी आती है ना। तो ये है देखो, तो अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो दोबारा से टेबल, और उस टेबल में हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे रेंज जो है कैलकुलेट होती है, ठीक है। आप शुरू में बस इंटीजर कैरेक्टर, साइंड इंटीजर, साइंड कैरेक्टर, इनका थोड़ा सा देख लो क्या होता है। साइज तो सबकी याद कर लो, है ना। रेंज जो है शुरू में 2-3 की रेंज याद कर लो बस, ठीक है, हो गया। रेंज निकालते कैसे ही मैंने आपको बता दिया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। देखो हाँ, पहले इसकी जो साइज देख लो, देखो कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होती है, अनसाइंड कैरेक्टर की भी 1 होती है ना, और साइंड कैरेक्टर की भी 1 होती है। साइंड और अनसाइंड में क्या अंतर है, देखो मैंने बताया था ना, साइंड कैरेक्टर वो होगा जिसमें क्या होगा कि जो आपकी पहली वाली बिट है ना वो रिजर्व रहती है साइन के लिए, है ना। जो पहली वाली बिट जिसमें रिजर्व रहेगी साइन के लिए कि प्लस माइनस के लिए, वो साइंड कैरेक्टर हो गया। अनसाइंड होता है जिसमें
प्लस माइनस का झंझट नहीं होता, वो केवल प्लस ही वाली रिप्रेजेंट करता है, तो वो पूरी रिप्रेजेंट करेगा 255, है ना, 0 से 255 तक आपकी पूरी रिप्रेजेंट करेगा अनसाइंड, है ना। अब देखो इंटीजर की साइज होती है आपकी 2 बाइट होती है, अनसाइंड इंटीजर होता है उसकी 1 बाइट होनी चाहिए, लेकिन देखो इन्होंने 2 लिख रखी है, चलो ठीक है मान लो। साइंड इंटीजर की भी 2 लिख रखी है, अच्छा इंटीजर में साइंड और अनसाइंड लगाया है, तो हाँ साइंड और अनसाइंड की तो 2 ही रहेगी, शॉर्ट की 1 हो जाएगी और लॉन्ग की 4 हो जाएगी ना, तो शॉर्ट इंटीजर की 1 हो जाती है, लॉन्ग इंटीजर की 4 हो जाती है। साइंड और अनसाइंड की साइज तो उतनी रहती है ना, बस साइंड में तो क्या प्लस वाला जो शुरू वाली बिट होती है वो साइन के लिए यूज में आ जाती है, ठीक है। फ्लोट की आपकी 4 होती है, डबल की 8 होती है, लॉन्ग डबल की 8 होती है। अब थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं इस तरफ, देखो रेंज क्या क्या आ रहा है ना, देखो देखो कैरेक्टर का रेंज आता है -128 टू 127, क्यों, क्योंकि ये जो है शुरू वाला जो साइन होता है ना, पहली वाली बिट वो साइन के लिए होती है, तो नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव भी। अब देखो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट देखो, अनसाइंड कैरेक्टर वाला, तो आ गया ना अनसाइंड का 0 से 25, क्योंकि पहली वाली जो बिट है वो साइन के लिए रिजर्व नहीं है अब, है ना, क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव आते हैं। अनसाइंड का मतलब है केवल नॉन नेगेटिव, कि 0 से पॉजिटिव नंबर्स, है ना। जहां पर भी अनसाइंड लिखा हुआ है तो अनसाइंड का आप मतलब समझ लो कि उसमें साइन नहीं है, इसका मतलब केवल नॉन नेगेटिव नंबर्स आएंगे इसमें, है ना, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 0 आएगा और पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो हमने देखा था अभी 0 से लेकर 255 तक सारे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहली वाली बिट साइन के लिए रिजर्व कर दी तो जो है आपका -128 से 127 आ जाता है ना, क्योंकि आधा हो गया ना, 256 का आधा क्या होता है 128, तो 0 से 127 हो गया और इधर -128 से -1 हो गया, ठीक है। तो ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें एक्सप्लेन भी नहीं करी हुई है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बता दिया कि रेंज कैसे कैलकुलेट होती है ना, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रेंज कैसे कैलकुलेट होती है और रेंज साइज क्या होती है और साइज से ही रेंज कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो सारों की साइज जो है आपका कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है, बस इसी में ही है, ठीक है। ये जो होता है देखो ई वगैरह जो होता है ना, इसका मतलब होता है 10 की पावर -38, जैसे आप देखो ये फ्लोट की, जैसे लास्ट वाला देख लो लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है 3.4, और ई की पावर -4932 का मतलब होता है 10 की पावर -4932, ठीक है, जो ई का मतलब होता है 10 की पावर माइनस, ठीक है। तो बस ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये केवल रेंज दे रखी है, एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं है इसके बारे में, तो हम भी यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, फिर उसके नीचे यूनियन के बारे में बता रखा है। तो देखो स्ट्रक्चर आप पढ़ ही चुके हो ना, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बेसिक डेटा टाइप्स आर नॉट सफिशिएंट टू हैंडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ए स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स एंड अदर डेटा टाइप्स, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब देखो इसमें स्टूडेंट का नाम दे रखा है, एक एग्जांपल है ना, स्टूडेंट के परसेंटेज कितने हैं ये हैं, और इस तरह से जो है आपका हो जाता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है, एक बार बस बुक को स्कैन कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनियन में क्या दे रखा है, यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर टाइप इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है, अभी बता देते हैं, चलो ये भी ठीक है। फिर आ रहा है आपका दिस डिक्लेरेशन वेरिएबल आइटम 1 दिस यूनियन, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और यूनियन है नेक्स्ट टॉपिक। अब वो देखो बोर्ड पर आ जाओ, फिर बोर्ड पर समझा देते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है यूनियन। देखो अब अभी हम देख रहे हैं बेसिक डेटा टाइप्स तो हमने देख ही लिया ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्या आता है, आपका स्ट्रक्चर है, यूनियन है ना, फंक्शन उसमें आते हैं, तो वो देख लेते हैं। फंक्शन आते हैं उसमें नहीं, इन एन्यूमरेशन आता है, ठीक है, एन्यूमरेशन आता है। फंक्शन तो उसमें आते हैं डिराइव डेटा टाइप्स में। स्ट्रक्चर आ गया, यूनियन आ गया, आपका एन्यूमरेशन आ गया, ये सब आते हैं आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में। देखो देखो होता क्या है कि देखो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स होती है बेसिकली ना। बेस का मतलब आप समझते हो, बेस का मतलब ये होता है कि जो बेस है सारा कुछ उसके ऊपर ही बनता है। बेस का मतलब ये होता है कि जब आपने कुछ बेस लिया है तो जो भी बनेगा उस बेस के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो बेसिक डेटा टाइप्स है हमारी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। तो जो भी डेटा टाइप्स बनती है ना वो इन्हीं के यूज से ही बनती है। चाहे आप डिराइव डेटा टाइप्स देख लो, चाहे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स देख लो, बेस का मतलब यही होता है कि जो भी चीज आप बना रहे हो वो बेस के यूज से ही बनती है। तो आप चाहे स्ट्रक्चर, चाहे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बना लो, चाहे आप डिराइव डेटा टाइप्स बना लो, वो बेसिक डेटा टाइप्स का यूज कर कर ही बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर, है ना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास आता है पहले स्ट्रक्चर, STRUCT, है ना। स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके आप यूज में लेते हैं ना। स्ट्रक्ट आपका एक कीवर्ड होता है, जैसे क्लास कीवर्ड है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। तो देखो
अगर मेरे को जैसे कोई मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है, जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया इंटीजर x या फिर कैरेक्टर वगैरह, तो एक ही वेरिएबल मेरे को अलग अलग चीजों के लिए है ना अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते हैं। मतलब जनरली जो मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, केवल एक ही डेटा आइटम रखते हैं। जैसे मैंने लिया इंटीजर x, तो x में केवल मैं कोई एक ही वैल्यू डाल सकता हूँ। फिर मैंने लिया कैरेक्टर y, तो y में मैं केवल एक ही कैरेक्टर डाल सकता हूँ। ऐसे ही मैंने फ्लोट ले लिया मार्क्स, तो उसमें केवल एक ही मार्क्स डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार नीड ऐसी होती है कि मैं सारे के सारों को एक साथ कंबाइन करना चाहता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट की डिटेल है, उसका नाम है, उसके रोल नंबर है ना, उसका नाम आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, उसके मार्क्स आ गए। तो अगर मैं एक अलग अलग वेरिएबल लूँ यहाँ पर, अगर मैं अलग अलग वेरिएबल लूँ कि स्टूडेंट के नाम का मैंने अलग वेरिएबल ले लिया, फिर उसके अलग वेरिएबल ले लिया। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्या सारे लोग? ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मैंने नाम का एक अलग वेरिएबल ले लिया है ना, फिर उसके रोल नंबर का अलग वेरिएबल ले लिया कि नेम इज इक्वल टू दिस, रोल नंबर इज इक्वल टू दिस और मार्क्स इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे अगर मेरे को 5 स्टूडेंट लेने हैं तो सबके लिए फिर मैं क्या अलग अलग वेरिएबल लेता रहूंगा कि सबके लिए चलो नेम इसके लिए ले लिया तो उसके लिए क्या लूंगा, तो ये बहुत ही क्लटर्ड हो जाती है सारी सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसमें जो भी रिलेटेड टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साथ क्लब कर देते हैं, ठीक है, और फिर एक ही नाम से सारों को अलग अलग तरीके से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। वो भी बता देते हैं कि कैसे होता है वो, देखो। तो मैंने क्या बनाया कि इस तरह से, जैसे स्ट्रक्चर मैंने ले लिया स्ट्रक्ट आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं। अब जैसे स्टूडेंट की जो जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो अलग अलग वेरिएबल्स में आप यहाँ पर ले लो। जैसे मैंने कहा इंटीजर आपका रोल नंबर हो गया ना, ये आपका रोल नंबर हो गया, एक आपने रोल नंबर ले लिया ना। आप उसका नाम रखना चाहते हो तो नाम मैंने बताया था कैरेक्टर एरे की तरह रखा जाता है ना, तो आप ले लो कैरेक्टर आपका नेम ले लो और आप यहाँ कर दो 20, है ना, कैरेक्टर नेम आपका 20 कर दो कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा का उसका नाम नहीं होगा, ठीक है। 20 कर दो, 30 कर दो, जो भी कर दो ना, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सारी बातें कर चुके हैं। तो कैरेक्टर नेम ले लिया, इसमें जो है उसका नाम आ जाएगा। कैरेक्टर एरे जो है वो आपका स्ट्रिंग की तरह वर्क करता है। अब उसके मार्क्स ले लिए, तो यहाँ पर फ्लोट मार्क्स जो है उसके डेसिमल में भी हो सकते हैं ना, जैसे किसी में उसके 2.5 नंबर आए, 10 में से 2.5 नंबर आए, या 10 में से 7.5 नंबर आए। तो फ्लोट जो ले लिया आपने, मार्क्स ले लिया ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। चलो बस मान लो यही 3 इंफॉर्मेशन है ना, तो ये मैंने कर दिया आपका बंद इस तरह से, ठीक है। अब देखो कि अब जो है मेरे को अलग अलग स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं ना, अलग अलग स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस चीज का बहुत हेल्प हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, है ना, और फिर मेरे को अगर एक वेरिएबल क्रिएट करना है स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1, है ना, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया। स्टूडेंट 2 मेरे को क्रिएट करना है, तो ऐसे स्टूडेंट 2 क्रिएट कर लिया, है ना। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट का ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे सर बात यही होगी कि आप 100 वेरिएबल ले रहे हो 100 स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम एरे का यूज में लेते हैं ना, तो स्ट्रक्चर और एरे का दोनों का यूज कंबाइन कर देते हैं हम, ठीक है। तो इतना आपके है नहीं, कोई एग्जाम्पल अगर कभी आएगा तो बताएंगे। बाकी ये जैसे आप है ना, तो यहाँ पर आप क्या ले लो, इस तरह से एरे ले लो, है ना। जैसे मैं अलग अलग वेरिएबल लेके आपको दिखा रहा हूँ, या चलो एरे ही ले लेते हैं, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट और आपने ले लिया एरेबल 100 स्टूडेंट्स का एरे आपने ले लिया, बस, ठीक है। अब देखो आप आपने केवल एक ही वेरिएबल क्रिएट करा है, केवल स्टूडेंट, और उससे आप 100 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। एक वेरिएबल से 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो कैसे कैसे करेंगे ना। पहले स्टूडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इधर दिखता है आपको ज्यादा, इधर नहीं दिखता तो इधर आ जाओ। देखो पहले स्टूडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पहला स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट आपका स्टूडेंट 0, और अगर उसका आपको रोल नंबर चाहिए तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर कर दो ना। उसका अगर नाम चाहिए तो स्टूडेंट 0 डॉट नेम कर दो, और अगर उसका मार्क्स चाहिए तो स्टूडेंट 0 डॉट मार्क्स कर दो, ठीक है। अब दूसरा अगर स्टूडेंट करना है आपको तो कर दो स्टूडेंट, आप कर दिया 1, ठीक है। फिर दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर, ऐसे जो है आप कर सकते हो ना एरे की। जैसे लास्ट वाला स्टूडेंट आपका स्टूडेंट 99 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने देखा हमने वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करे ज्यादा ना, एक ही वेरिएबल नाम लिया केवल, यहाँ तो स्टूडेंट ले लिया, यहाँ इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट ले लिया ना, ये वाला थोड़ा एरे ले लिया, तो इसने सारे जो स्टूडेंट्स है मेरे उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह से देखो इसका यूज आता है कि यहाँ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, जैसे एक स्टूडेंट के रोल नंबर भी उसी का है, नेम भी उसका, तो इसने क्लब करने के काम में आता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर एरे का अलग से यूज में आ जाता है, तो ये होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन क्या होता है। देखो यूनियन भी सेम ही होता है ना।
अब तो अगर मेरे को यूनियन का यूज करना है तो देखो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इस तरह से, यूनियन स्टूडेंट कर दो ना, तो देखो यूनियन स्टूडेंट कर दो ना, यूनियन स्टूडेंट कर दिया, और आपने अगर आपको इसका कोई वेरिएबल यूज करना है तो आपने कर दिया यूनियन स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपको कोई एक स्टूडेंट है, चलो एक का केस ले लेते हैं, आपके वो वाला तो कर ही दिया, यूनियन स्टूडेंट, और आपने कर दिया स्टूडेंट 1, ठीक है। एरे का केस ले लिया था, अब एक सिंगल वेरिएबल का केस लेकर देख लो ना, देख लो ये वाला लेकर देख लिया। अब देखो, अब इस केस में क्या होता है आपका, इस केस में देखो ये होता है कि एक्सेस ऐसे ही करेंगे ना। अब ये देखो पहले वाला कैसे एक्सेस करेंगे, ऐसे ही करेंगे, स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट 1 डॉट नेम और स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स, ऐसे यूनियन एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि सर फिर इस यूनियन में और स्ट्रक्चर में अंतर क्या हुआ, सेम ही चीज तो आपने कर दी, यहाँ एरे ले लो तो ये बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर ही हो गया, तो फिर यूनियन में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या हुआ, वही डिफरेंस देखते हैं। देखो क्या होता है स्ट्रक्चर के केस में, क्या होता है स्ट्रक्चर के केस में आपका, देखो ये तीन एलिमेंट्स कोई ना कोई मेमोरी रखते हैं ना, ये तीन एलिमेंट्स कोई ना कोई मेमोरी रखते हैं। जैसे ये रोल नंबर है आपका, ये रोल नंबर रखेगा आपका 4 बाइट, है ना। अभी मैंने बताया इंटीजर की साइज, चलो आपके बुक में 2 बाइट दे रखी है, तो इसको चलो मान लो 2 बाइट रखता है, ठीक है। तो ये आपका रखेगा 2 बाइट, ठीक है। और अगर आपका फ्लोट क्या रखता है, आपका फ्लोट रखता है 4 बाइट, ठीक है, ये आपका फ्लोट रखता है, ठीक है। और देखो आपका जो कैरेक्टर क्या रखता है यहाँ पर, ठीक है, कैरेक्टर आपका देखो 20 कैरेक्टर है तो ये आपका 20 बाइट रखेगा ना, 20 कैरेक्टर्स हैं तो आपके 20 बाइट रखेगा, ठीक है। तो 2 बाइट हो गई, 20 बाइट हो गई, 4 बाइट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब देखो जब भी आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे ना, तो एक अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करा, अगर आपने एक स्टूडेंट का कोई डेटा क्रिएट करा, तो टोटल कितनी साइज लेगा वो, 20 + 4 + 2, तो ये हो गया आपकी 26 बाइट, है ना, एक के केस में, है ना। क्योंकि दो तो इसके चाहिए, 20 बाइट इसको चाहिए, 4 बाइट इसको चाहिए, तो एक आपका अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और उसका डेटा अगर उसमें इंसर्ट करवा रहे हो, है ना, तो आपको 26 बाइट मेमोरी चाहिए। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर की बात। और जब आपका यूनियन के केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम होता है ना, केवल आप उसको ले लेते हो केवल, तो आपको यूनियन में केवल 20 बाइट चाहिए होती है, जो मैक्सिमम आपका होता है आप उसको ले लेते हो, ठीक है, 20 बाइट हो गई। अब देखो यहाँ पर ये एक चीज है, यहाँ पर एक कैच है कि सर अगर 20 बाइट, मतलब मैंने ये वाला वेरिएबल ले लिया, तो मैंने बाकी दो वेरिएबल तो लिए ही नहीं है एक्चुअली, तो उसमें तो मैं वैल्यू स्टोर करवा ही नहीं सकता। तो एक्चुअली यही जो होता है यूनियन का काम भी होता है, ठीक है। तो जनरली हम यूनियन को देखो अलग कॉन्सेप्ट में यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ले लिया एक रोल नंबर ले लिया, केवल 2 का एग्जाम्पल देखो ना, इस वाले को एक बार हटाकर देखो कि यूनियन का एक्चुअल में यूज कहां पर आता है। देखो अब देखो, एक हो गया आपका 2 बाइट, है ना। अगर स्ट्रक्चर के केस में आपको 6 बाइट की जरूरत पड़ेगी, 2 बाइट आपके इंटीजर के लिए, 4 बाइट आपके इसके लिए, मार्क्स के लिए ना। और आपके यूनियन के केस में आपको केवल 4 बाइट का ही क्रिएट होगा, ठीक है। अब आप देखोगे ये वाला एग्जांपल लेके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो स्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा तो ये दोनों इंफॉर्मेशन रखेगा, उसका रोल नंबर भी रखेगा और उसके मार्क्स भी रखेगा, और दोनों अलग अलग वेरिएबल में रखेगा ना। ये आपका रोल नंबर वेरिएबल क्रिएट होगा, एक मार्क्स वेरिएबल क्रिएट होगा, और अगर आपने कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा यहाँ पर, तो वो दोनों वैल्यू रखेगा, रोल नंबर भी रखेगा और मार्क्स भी रखेगा। लेकिन अगर आपने कोई यूनियन क्रिएट करा, है ना, अगर आपने सेम स्ट्रक्चर की जगह यूनियन क्रिएट करा, तो वो बेसिकली दोनों में से केवल एक ही वैल्यू एक टाइम पर रखता है। ये यूनियन का मतलब होता है कि दोनों में से वो केवल एक ही वैल्यू एक टाइम पर रखता है, तो यूनियन यूज में ही वहां आता है। ऐसा नहीं है कि जहां पर स्ट्रक्चर है वहां पर आप यूनियन का यूज में ले लोगे ना, स्ट्रक्चर जहां पर यूज में आ रहा है वहां स्ट्रक्चर ही यूज में आएगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर यूनियन यूज में आता है। वो कंडीशन क्या होती है, जब आपको दोनों वेरिएबल्स में से एक टाइम पर केवल एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है, या एक टाइम पर केवल एक ही वेरिएबल में अगर आपको डेटा स्टोर करके रखना होता है, तो ही यूनियन का काम में आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आपके अभी दे नहीं रखे एग्जांपल्स वगैरह, नहीं तो हम बताते आपको। तो अगर आपको जैसे यहां पर स्टोर करवानी है तो यहां पर स्टोर नहीं होगी, यहां पर स्टोर करवानी है तो यहां नहीं। देखो काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि स्ट्रक्चर के केस में तो क्या होगा, स्ट्रक्चर के केस में तो आपका 2 बाइट ये वाली क्रिएट हो गई ना, ये 2 बाइट क्रिएट हो गई, और ये 4 बाइट क्रिएट हो गई ना, 2 बाइट ये क्रिएट हो गई और ये 4 बाइट ये क्रिएट हो गई, है ना। स्ट्रक्चर के केस में रोल नंबर आपको इंसर्ट करना है, यहां पर आ जाएगा, मार्क्स आपको इंसर्ट करने यहां पर आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनियन के केस में क्या होता है कि इन दो में से केवल एक ही मेमोरी हमारे पास होती है 4 बाइट की, बस मैक्सिमम वाली हम इसीलिए लेते हैं कि हम 4 बाइट का एक ये स्पेस क्रिएट कर देते हैं, मेमोरी क्रिएट कर देते हैं 4 बाइट की।
अब आप फ्लोट अगर मार्क्स रखने हैं तो मार्क्स पूरे के पूरे जो है यहाँ से यहाँ तक जो है मार्क्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्क्स स्टोर नहीं करने और आपको किसी टाइम पर रोल नंबर चाहिए तो फिर जो मार्क्स है ना वो आपके डिलीट हो जाते हैं और शुरू से जो है आपका स्टार्टिंग से जो है आपका रोल नंबर मार्क यहाँ पर स्टोर होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मार्क्स है वो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं क्योंकि आप एक तरह से ओवरराइड कर देते हो। तो आप यहाँ समझो कि आपने यहाँ पर क्या किया कि दोनों वेरिएबल अलग अलग जगह स्पेस में स्टोर करे थे। इसके लिए आपने एक अलग स्पेस बनाया था, इसके लिए आपने अलग स्पेस बनाया था। यूनियन में क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम वाला होता है उसका स्पेस ले लेते हो और जो भी आपका स्टोर होता है उसी में होता है। जैसे अगर आपने मार्क्स करा रखा है तो वो पूरे में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने रोल नंबर डाल दिया तो मार्क्स हट जाते हैं, फिर रोल नंबर आ जाता है। अब रोल नंबर आपको नहीं चाहिए, वापस मार्क्स चाहिए तो रोल नंबर हट जाएंगे, मार्क्स आ जाएगा। तो एक टाइम पर एक ही चीज स्टोर होती है, ठीक है। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट होता है और कुछ इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं जहां पर इनको यूज में होता है, ठीक है। हर जगह यूज में नहीं आ सकते। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका यूनियन हो गया, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो है हमारा एन्यूमरेशन, ठीक है। फिर एक आपके पास आता है क्लास। तो क्लास तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एन्यूमरेशन देखते हैं। एन्यूमरेशन क्या होता है देखो, ठीक है। फोटो वगैरह खींच लेते हो ना इसकी, नहीं तो मैं देखो वीडियो तो अपलोड कर ही देता हूँ, फिर भी फोटो खींचते रहा करो, ठीक है। इसकी मैं वेट करूंगा, 1 मिनट वेट करूंगा, 2 मिनट वेट करूंगा, तो फिर बहुत टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फोटो खींचते रहा करो, टाइम टू टाइम फोटो खींचते रहा करो, और नहीं तो वीडियो में कभी देख लिया करो। वीडियो में अपलोड कर ही देता हूँ ना अकाउंट पर। मेरे अकाउंट पे मैंने सारे वीडियो अपलोड करे हुए हैं ना, मेरा अकाउंट है उस पर मैंने सारे वीडियो डाल देता हूँ मैं रोज, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी क्लास में ले लिया करो, हो सकता है कभी अपलोड ना भी हो पाए, कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, ठीक है। ये तो चलो हो ही गया। अब देखो एन्यूमरेशन क्या होता है। एन्यूमरेशन क्या होता है देखो, ठीक है। एन्यूमरेशन भी बोल देते हैं इसको, या इनम डेटा टाइप भी बोल देते हैं ना, इनम डेटा टाइप। इनम डेटा टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, कुछ ही नहीं होता कि मतलब आपको देखो नंबर्स यूज में ले रहे हो आप किसी जगह ना, कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नंबर्स यूज में ले रहे हो, तो नंबर्स क्या होता है अच्छे नहीं लगते यूज में लेना। तो नंबर्स की जगह आप क्या लेते हो, कई बार नाम यूज में ले लेते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम ऐसे बना दिया कि अगर कोई 0 नंबर एंटर करे तो मुझे बता दे कि भाई आपने जो है, सोचने दो थोड़ा सा एक बार क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इसमें तो है नहीं। ये आपका देखो डिक्लेयर ऐसे होता है, इनम हो गया आपका, रेड आपने डिक्लेयर करा और फिर आपने ग्रीन डिक्लेयर करा और फिर आपने ब्लू डिक्लेयर करा ना, ऐसे जो एग्जाम्पल दे रखा है बुक में ऐसे ही है, ठीक है। देखो अब देखो ये जो है आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया ना, ये बेसिकली वेरिएबल्स नहीं होते, ये कांस्टेंट्स बोलते हैं इनको ना। बेसिकली अगर आपको 3 कांस्टेंट ऐसे डिक्लेयर करने हैं तो इन कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज हो जाती है वो 0 1 2 बाय डिफॉल्ट अपने आप 0 1 2 इसकी वैल्यू होती है। तो जहां पर भी आप रेड यूज कर रहे हो उसका मतलब है कि 0 है, जहां पर भी आप ग्रीन यूज कर रहे हो उसका मतलब 1 है, जहां पर भी ब्लू यूज कर रहे हो उसका मतलब 2 है, ठीक है। तो देखो, हाँ देखो मेरे को एग्जांपल याद आया इसमें कि सपोज आप ट्रैफिक लाइट वाली कंडीशन को देख लो, वहां पर ये 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ना। रेड ग्रीन ब्लू तो नहीं होते, रेड ग्रीन और येलो होते हैं, ठीक है। तो येलो ले लो या तो, है ना, रेड ग्रीन और येलो ले लो, ठीक है। ठीक है, 3 कलर होते हैं, ठीक है। अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अगर आपको अब ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपको देखना है कि अगर वैल्यू 0 है, अगर कोई वैल्यू 0 है, जैसे आपने कोई एंटर ली इन्फॉर्मेशन वहां से, ठीक है। तो अगर मान लो कोई सी भी इन्फॉर्मेशन ली आपने, ठीक है, अगर वो वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आप रेड सिग्नल कर दो, और अगर वैल्यू 1 है तो आप ग्रीन सिग्नल दे दो, और वैल्यू अगर 2 है तो आप येलो सिग्नल दे दो, है ना। ये आपको एक प्रोग्राम बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा वो प्रोग्राम, ऐसे बनते हैं कि इफ अगर अगर आपका सिंबल अगर है ना, सिंबल या कोई सा भी आपकी वैल्यू है आपका, या तो कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, जैसे कोई सा भी आपका डेटा है, जैसे वैल्यू इज अगर आपका 0 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कोई भी प्रोसेसिंग करनी है कि आपको क्या करना है, शो आपका रेड, है ना, रेड सिंबल शो कर दो ना, या शो रेड लाइट, आपको रेड लाइट शो कर देनी है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैंने केवल लाइन लिख दिया ना, शो रेड लाइट करनी है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर इफ आपका वैल्यू इज इक्वल टू अगर आपका 1 है तो आप ये कर दो कि शो कर दो आप जो है आपकी ग्रीन वाली लाइट, है ना,
ग्रीन लाइट शो कर दो, ठीक है, ये वाला। और अगर आपकी वैल्यू 2 है, ठीक है, वैल्यू 2 है तो आप जो है येलो लाइट शो कर दो, ठीक है। ये आपने प्रोग्राम बनाया। अब देखो इस प्रोग्राम में आपने क्या यूज करा है कि रेड लाइट के लिए 0 यूज करा है और आपने ग्रीन लाइट के लिए 1 यूज करा है। लेकिन ये प्रोग्राम क्या होता है, जनरली हम अवॉइड करते हैं 0 1 2 नंबर्स यूज करना। हम चाहते हैं कि 0 1 2 नंबर्स यूज करने की जगह कुछ नाम यूज करें जिससे ये समझ में आए कि ये क्या है, ठीक है। जनरली हम ऐसा ही करते हैं कि हम जो है जहां नंबर्स यूज में लेते हैं ना, वहां नंबर्स अवॉइड करके कुछ मीनिंगफुल नेम लेने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कॉन्स्टेंट्स का यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर देंगे जिसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे जिसकी वैल्यू, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो देखो ये वही केस है ना, रेड को हमने कांस्टेंट ले लिया रेड जिसकी वैल्यू 0 है, एक कांस्टेंट ले लिया ग्रीन जिसकी वैल्यू 1 है, एक कांस्टेंट ले लिया आपने येलो जिसकी वैल्यू 2 है। अब अगर मैं यहाँ 0 की जगह आपका रेड यूज में ले लूं कि वैल्यू इज इक्वल टू रेड और यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू ग्रीन, तो देखो प्रोग्राम जो है देखने में अच्छा लगता है और समझने में आता है, ठीक है। मेनली बात यही कि वो समझ में आता है आपका, है ना। अब अगर ये कोई प्रोग्राम देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वैल्यू अगर रेड है या वैल्यू ग्रीन है या वैल्यू आपका येलो है तो क्या करना है। 0 1 2 से समझ में नहीं आता पढ़ने वाले को। तो अब ये क्या है, इसीलिए क्या है, लेकिन रेड का मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब 0 है, ग्रीन का एक्चुअल में मतलब क्या है 1 है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट्स होते हैं ना, कांस्टेंट्स आपने यूज में करे होंगे। तो इसी तरह से हम ये कांस्टेंट डिक्लेयर, देखो डिफरेंस होता है वेरिएबल में और कांस्टेंट में ना। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज आप चेंज कर लेते हो, कांस्टेंट वो हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने रेड को 0 दे दिया, बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 अपने आप असाइन हो जाता है ना। जो भी आप पहला नाम लिखोगे यहाँ पर वो एक कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। सेकंड कांस्टेंट ग्रीन डिक्लेयर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। थर्ड येलो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2। बाय डिफॉल्ट 0 1 2 इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है ना ये। तो आप बस इसी तरह से देखो, ये बेसिकली कांस्टेंट डिक्लेयर करने होते हैं ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप है ना खुद से वैल्यू दो इसको, तो आप खुद से भी दे सकते हो वैल्यू। जरूरी नहीं है कि 0 1 2 आप दो ना, आप खुद से भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि रेड को रहने दूं, मैं चाहता हूं ग्रीन को वैल्यू दे दूं 4, है ना, और आप ब्लू को या फिर येलो जो था मेरा उसका, येलो को वैल्यू दे दूं मैं 5 या येलो को मैं वैल्यू दे दूं 8, तो ये भी ठीक है। रेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रीन की वैल्यू 4 हो जाएगी, येलो की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने येलो की वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पर, है ना, येलो की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी, तो येलो की वैल्यू जो है 5 होगी, फिर उसके आगे वाली जो पिछले वाली की वैल्यू है उसके आगे वाली से स्टार्ट होगी। समझ गए, बस यही इसका थोड़ा सा कैच है कि अगर ग्रीन की वैल्यू 4 आपने असाइन करी हुई है तो आगे वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो जाती है। या तो आपको ये अलग से मेंशन कर दो या फिर ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एन्यूमरेशन है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो एक और होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस टाइप, ठीक है। अब देखो रेफरेंस टाइप क्या होता है या फिर ये क्या है देखते हैं। देखो रेफरेंस टाइप क्या होता है ना, रेफरेंस टाइप, ठीक है। रेफरेंस टाइप क्या होता है, देखो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 2, ठीक है। फिर मैंने लिखा इंटीजर y इज इक्वल टू आपका लिख दिया 2, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो होता क्या है, बेसिकली दो अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं ना। एक आपका ये वेरिएबल क्रिएट हो गया और एक आपका एक और वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम है x है, इसका y है, इसमें भी वैल्यू 2 है, इसमें भी वैल्यू 2 है। लेकिन जनरली मैं क्या चाहता हूं कि एक ही वेरिएबल को, मतलब एक ही वैल्यू को बेसिकली मैं दो नाम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, या एक ही वेरिएबल के मैं दो नाम रखना चाहता हूं, ठीक है। वेरिएबल एक ही है, आपके नाम दो हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखो कि वेरिएबल एक है, नाम दो है। तो क्या करता हूं, या ऐसे लगा देता हूं %y इज इक्वल टू x, इंटीजर %y इज इक्वल टू आपका x। तो होगा क्या कि बेसिकली अब y भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा और आपका जो x है वो भी इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा, सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ना, सेम एरिया। तो होगा क्या, देखो इस केस में क्या होता है, अगर ऐसा करता हूं तो क्या होता है, इंटीजर x क्या होता है, इंटीजर 2 बाइट्स मेमोरी लेता है ना, 2 बाइट्स उसकी साइज होती है। तो 2 बाइट्स की आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ये 2 बाइट की आपकी मेमोरी एलोकेट होगी ना। यहां पर जो है आपका 2 स्टोर रहेगा। तो x भी इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा और y भी इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा, सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा x। तो आप ये कह सकते हो कि सेम ही एरिया के दो नाम है, एक x है एक y है। आप अगर x में चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, y में चेंज करोगे तो x की वैल्यू। देखो कैसे, अगर मैंने करा x इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अगर x को 3 करा तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, और y को अगर
4 कर दिया तो x की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रेफरेंस टाइप होता है, मतलब एक ही वेरिएबल के दो नाम हो जाते हैं आपके, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी देख लो, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, वैसे शायद टाइम हमारे पास बचा नहीं है, 1 मिनट बचा है, फटाफट स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपका, देख लो फटाफट से। देखो ये कहाँ गया, हाँ देखो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सारा हम देख चुके हैं ना, वही है। ये यूनियन हमने देख लिया, ये यूनियन में वही लिखा हुआ है ना, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। ये जो क्लास है, क्लास जो है हम आगे पढ़ेंगे, क्लास में देखो लिखा हुआ क्या है, class is an important feature of C++, just like any other basic data type, class type variable can be declared, the class type variables are called objects, ठीक है। we will discuss class, ठीक है। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना क्लास के, उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा तो, तभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। फिर ये एन्यूमरेटेड डेटा टाइप आ गई, ये भी मैंने बता दिया ना। तो ये जो चारों की चारों जो है आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गई, उसके बाद आती है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ज्यादा उसमें है नहीं है ना। तो ये देखो ये आपकी डेटा टाइप्स हो गई, बेसिक डेटा टाइप्स हमने देख ली, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, यूजर डिफाइंड हो गई, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और एन्यूमरेशन हो गई। रेफरेंस बेसिकली आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ना देखो यहाँ पर आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स में लिखा हुआ है रेफरेंस, लेकिन इन्होंने जो है डिराइव्ड डेटा टाइप्स का अलग टॉपिक बना रखा है और रेफरेंस उसी के अंदर ही है, ठीक है। जो रेफरेंस है बेसिकली डिराइव्ड डेटा टाइप्स है ना। तो एरे देख लिया हमने, फंक्शन देख लिया, पॉइंटर देख लेंगे ना, एरे, फंक्शन, पॉइंटर सब देख लेंगे, रेफरेंस हम देख चुके पहले ही, ठीक है। तो रेफरेंस जो है वो बेसिकली आपका डिराइव्ड डेटा टाइप्स में ही आ जाता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड में हम 3 देख ही चुके हैं पहले, क्लास जो है वो क्लास हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्लास जो है अलग से आएगी, ठीक है। चल